अली की टीम को जिन्होंने टक्कर दिया था. Now their competitor, it's time to welcome Arjun Bijlani from Mumbai Kings. अब बुलाते हैं हमारे गंभीर कैप्टन को, Surya Sharma from Jets. अब बारी आती है हम सबके फेवरेट कूल विकास जैन. सबके चहीते विकी भैया के लिए जोरदार तालियां. अब बारी आती है उस कैप्टन की जो सीजन 1 में ग्राउंड पे सबसे ज्यादा एनिमेटेड थे. क्या कोई गेस कर सकता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द मोस्ट एनिमेटेड कैप्टन ऑफ सीजन 1, अली गोनी. हमारे बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड कैप्टन की. क्या कोई बता सकता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? द मोस्ट डिसिप्लिन्ड कैप्टन ऑफ सीजन 1 एंड दैट इज रोहित रॉय फ्रॉम पुणे फैल्कन्स. बारी आती है जिन्हें कहा जाता है कि कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है ग्राउंड पे. क्या कौन से कैप्टन है जिन्हें थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है ग्राउंड पे? बारी आती है करण वाही फ्रॉम दिल्ली ड्रैगन्स. जब एक करण आ ही गए हैं तो दूसरे करण क्यों पीछे रहे? अब जब एक करण आ ही गए हैं तो दूसरे करण क्यों पीछे रहे? कॉलिंग करण वीर बोरा फ्रॉम राजस्थान जैगुआर. Now these are the captains of season 1 of All Stars Tennis Ball Cricket League. But season 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा बोल्ड है. तो हमने ऐड किए हैं 2 नए टीम्स और ये 2 नए टीम्स हैं. पहले बुलाना चाहूंगी हमारे नए कैप्टन करण वीर मेहरा फ्रॉम देसी वीर हॉक्स. बारी है उनकी जिन्हें कहा जाता है रियलिटी किंग. एनी गेसेस? रियलिटी किंग का वेलकम किया जाता है प्रिंस नरूला फ्रॉम पहलवान पैंथर्स.
लगा आप सभी को हमारे कैप्टन्स का स्वैग? Presenting to you the captains of 10 teams of ASTCL Season 2. Now, may I please request Mr. Bunty Walia and Mr. Dilip Agarwal to please join us on the stage. Thank you so much, Bunty, for joining us, and Dilip sir for joining us. So, Bunty, this is your brainchild. This league is your brainchild, and I would want to know from you, what was the thought process behind starting this whole league, and what do you have to say about the league? Good evening, everybody. Great question. So I'll give a great answer. So I'm in the business of making films and doing events. And 13, 14 years ago, I thought that I must have another vertical in my company, and I got into sports. And I started with the Jaipur Pink Panthers with Abhishek Bachchan, the Kabaddi team. Then I started the All-Stars football club with Abhishek and Ranbir and everybody else. They've been playing for 12 years now. And then I started an influencers league, because influencers were what was happening a couple of years ago, and that's for football. And then finally I plunged into cricket, and my good friend Arjun Kapoor actually suggested that I should start a tennis ball cricket league, because tennis ball cricket league was what was happening in the last 2 years. So that gave me the idea, and I called up my friends from the television industry who are all here, all kings in their own kingdom, and they were gracious enough to accept, and they were captains of the 8 teams that we started last year with, and we've added 2 more, Karan Mehra, who plays in my football team, and of course Prince Narula. They were gracious enough to accept, and that's how the league started. Thank you so much, Bunty. And my friends from the media, इससे पहले कि आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत करें, मैं चाहती हूँ कि हमारे कैप्टन्स आसपास में थोड़े से ना खुल जाए, क्योंकि 2 नए कैप्टन्स ने ज्वाइन किया है. तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे सीजन्ड कैप्टन से कि आपको क्या लगता है कि ये आप लोगों को मुकाबले क्या टक्कर दे सकते हैं. पूछते हैं आमिर अली से. आमिर अली तो सीजन 1 जीत चुके, तो क्या लगता है आपको कि करणवीर मेहरा और प्रिंस नरूला, हमारे रियलिटी किंग स्टार, आप लोगों को टक्कर दे सकते हैं? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर बीइंग हियर. यार बिग बॉस से बाहर निकलो यार और क्रिकेट खेलो थोड़ा, बस यही बोल के तुमने. See, every team is good. The selection is in place. सारे captains अच्छे, सब stars हैं, सब अच्छे players हैं. So anyone can win. हम किसी ने सोचा नहीं था कि हम जीतेंगे, हम जीत गए last year. So it's anyone's game. It's a tough game, and yeah, कोई भी जीत सकता है. नहीं, अगर आपका कहना है कि किसी को नहीं लगा था कि आप जीतेंगे, अंडरडॉग तो मुझे लगता है कि विकी जैन थे. तो विकी जैन ही आंसर करेंगे. जब मेरा मैच हुआ था ना वो अंडरडॉग वाला, उस टाइम आप बाहर हो गए थे लीग से, इसलिए आपको ये वो वाला मैच की बात हो रही है. ये अच्छा आंसर था. अली ने मुझे प्रॉम्प्ट किया. अंडर का तो नहीं पता, डॉग तो था लास्ट टाइम. Can we get another mic? अंडरडॉग वाला सीन तो देखो जेन्युइनली हुआ था, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स जो मैच था वो बहुत ही तगड़ा हुआ था, जो हमारा और जो विनिंग टीम है उनके बीच में हुआ था, और हमने काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर आपको दी थी, अगर आपको याद होगी तो. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आपको याद नहीं होगी, बट आपने याद किया है, अच्छी बात है. सो यू आर स्टिल ग्राउंडेड आफ्टर विनिंग द सीरीज एज वेल.
तो मजा आया था। मतलब पॉइंट इज दैट कि जिस तरह का इंटेंस और सीरियस माहौल हो जाता है ना इस मैच में, वो पहले होता नहीं, बिकॉज हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं एट द सेम टाइम, लेकिन वहां जाके सारे के सारे दुश्मन हो जाते हैं। स्पेशली जो जिस तरह का एग्रेशन अपना करण लेके आता है, और अली की थोड़ा पिछले साल फिटनेस साथ नहीं दे पाई थी, इसीलिए वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। बट चेन्नई साइड से आपने बहुत अच्छा खेला था भाईजान, आप तो जीते। ये तो पता नहीं जीत ही रहे हैं, करणवीर मेहरा का एक जीतने का टाइम चल रहा है। आई होप नया बिग बॉस आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, तो भाई इसमें पॉजिटिव मत रहना, ये नवंबर में हो रहा है। तो जैसे विकी ने करण के बारे में कहा, करण वाही के बारे में कि इन्हें गुस्सा बहुत आता है, तो करण आप बताना चाहेंगे आपको इतना गुस्सा क्यों आता है ग्राउंड पे? ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं बिग बॉस के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये थोड़ी सी लेट शुरू हुई है प्रेस कॉन बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, बट BMW का टायर पंचर। तू बता है। बट गुस्सा नहीं है, आई थिंक दैट्स इज जस्ट स्पोर्ट। और क्रिकेट ना ऑन फील्ड, चाहे ये क्रिकेट टीम रही हो या इससे पहले हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, क्रिकेट फील्ड में कुछ हो जाता है मुझे। बट आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एट द एंड ऑफ द डे जो फील्ड पे होता है वो फील्ड पे ही रहता है। और आई थिंक दैट्स द वे आई प्ले माई क्रिकेट एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट फॉर एनीबॉडी। बट हाँ, मतलब कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा गुस्सा कम करें। नहीं नहीं, हमें बड़ा मजा आता है कि नहीं? आप करो गुस्सा। हाँ, मजा आता है, खाली माइक मत तोड़ना। करण की पिछले बार की एक स्पोर्ट्स अग्रेशन की वजह से एक नया रूल ऐड हुआ है इस बार ASTCL में कि कोई भी अगर पहना हुआ माइक तोड़ देगा तो 1 लाख रुपए का फाइन रहेगा। यार मैंने माइक तोड़ा नहीं था, मैंने माइक निकाला था, वो टूट गया। मतलब उसी तरह से मत निकालना, इस बार निकालना, वो टूट गया। अच्छा, अब जब हमने अग्रेशन की बात कर ली है तो डिसिप्लिन की भी बात कर लेते। हमारे रोहित रॉय जी, आप बहुत ही शांत थे, आपके डिसिप्लिन के लिए आप जाने जाते थे सीजन 1 में, तो क्या हमको यही फेस देखने को मिलेगा आपका सीजन 2 में भी? ये लोगों ने लेजेंड बोल बोल के मेरे को शांति कर दिया है। मतलब इतना प्यार से लेजेंड बोलता है, मैं क्या एग्रेशन दिखाऊंगा? सारे के सारे छोटे भाई हैं मेरे भाई, वेटरन। बट मेरा ये मानना है कि एग्रेशन दिखाने के कई तरीके होते हैं। आप डिसिप्लिन रहें, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ट्रेट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहे फील्ड पे, और ये इनका जो एग्रेशन है वो बहुत अच्छा करेक्ट एग्रेशन है, क्योंकि जब आप फील्ड पे उतरते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप किसके साथ खेल रहे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन डिसिप्लिन इन माय लाइफ, समटाइम्स आई फॉल ऑफ, बट एंड स्पोर्ट्स में मेरा हमेशा मानना है, 13-14 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट डिसिप्लिन समथिंग विच इज ऑलवेज बीन बाय माय साइड। इस बार शायद कोशिश करूंगा ज़्यादा एग्रेशन दिखाने की, ताकि करण को टक्कर दे सकूं। अग्रेशन तो ठीक है, बट आपने कोई स्ट्रैटेजी चेंज की है? बिकॉज माना कि मैंने ये टाइटल विकी जैन को दिया था अंडरडॉग का, बट आपकी टीम थोड़ी सी तो ढीली पड़ गई थी सीजन 1 में, है कि नहीं? फर्स्ट सीजन में हम लोग भी देख रहे थे, वी वर ससिंग आउट द टीम्स, वी वर टेस्टिंग द वाटर्स। लेकिन इस बार मैं आपको एक चीज तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो पिछली बार लीग में हमारी स्टैंडिंग थी वो इस बार डेफिनेटली नहीं होगी। 110% आई कैन गारंटी यू दैट। So we shall play our best again. And I want to add one thing. हम लोग लास्ट जरूर आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कोशिश, मेरी यंग टीम थी, कोशिश पूरी की थी। बंटी, am I right? We tried our best. I think everybody agrees to that. And best wishes for season 2. अब बात करते हैं उनसे जिनका शुरुआत हुआ है मेरे साथ मन भर गया आपका। आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे, बट हमारे नए कैप्टन से बात करते हैं, रियलिटी किंग स्टार प्रिंस नरूला जी। वेलकम टू ऑल स्टार्स टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में। आप रियलिटी शो के किंग है, राइट? यहाँ पे गैंग नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है, वोटिंग नहीं है, कैसे खेलेंगे यहाँ पर आप? कैसे खेलेंगे? मतलब बैट बॉल है, उसमें खेलना है हमने, और कैसे खेलेंगे? वोटिंग नहीं होने वाली यहाँ पे, सिर्फ परफॉर्मेंस। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने सबको, यार सब बहुत ही सीनियर है यहाँ पे, बहुत ही काम कर चुके हैं, मैंने सबको देखा है। मैं और अली सेम जर्नी से हमारी स्टार्ट हुई है यहाँ पे, सबने बहुत काम किया। सिर्फ एक ही है जो पैसे से आया, वो विक्की, तो पैसा कुछ भी करा सकता है, ठीक है? वो चाहे हम पैसा लेते हैं, ये पैसा देता है करने के लिए। बाकी ये फील है, मजा आएगा सबको, हम सब दोस्त हैं एक दूसरे के लिए। जैसे मैं करण भाई के एग्रेशन से बहुत इंप्रेस होता हूँ हमेशा, मैं जब भी देखता हूँ उसको खेलते हुए, मेरा फेवरेट है वो जब भी खेलता है। अभी हमने एक और जा कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं बोलता हूँ कि वाही हमारी टीम में रहना चाहिए ना, जहाँ वाही है वहाँ पे उम्मीद है
है ना। सो बहुत ही सही खेलेंगे, मजा आएगा। अगर यहाँ पर भी लड़ाई होगी तो वो एक फील्ड की लड़ाई है, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है किसी को भी किसी से। नहीं नहीं, आपको पता है लड़ लेते हैं ये लोग। पर अभी मेरे को लगता है मेरी बेटी हुई, मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, है ना। तो सो बस हम मजे करेंगे यार, मेरे सारे भाई हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? अग्रेशन या कुछ नहीं, अच्छा काम? खेलेंगे, कुछ अच्छा खेलेंगे, जहाँ पर हमें लगेगा गलती है वहाँ पे हम सुधारेंगे भी, ठीक है, अगले मैच में। पर मुझे लगता है कि क्रिकेट है ये उस दिन की बात होती है कि उस दिन किसका बल्ला चलता है और किसकी बॉलिंग सही होती है। ऐसा नहीं है कि अब हमेशा हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे ही, ठीक है ना। सामने वाला भी खेलना है, अच्छा खेलेगा। सो आई थिंक जो अच्छा खेलेगा उस दिन पे वो जीत जाएगा। बट हु अकॉर्डिंग टू यू इज द मोस्ट पावरफुल प्लेयर ओवर हियर? मेरे को तो अभी तक मैंने भाई को खेलते हुए देखा है, तो मुझे पता है भाई पावरफुल प्लेयर है। यस, अली को मैंने देखा नहीं खेलते हुए अभी। अली को अली सबसे बेटर शेफ है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे कोई शेफ कौन है, मैं कहूँगा अली, ठीक है। आफ्टर पार्टी हमारा वही सब कुछ बना कर देगा हमें, चाहे हारे चाहे जीते, उसके बाद पार्टी अली के घर पे हो जाएगी। पर अभी वाही को मैंने खेलते हुए देखा हुआ, तो वाही सबसे खूंखार प्लेयर है। थैंक यू सो मच। अब जब नए कैप्टन से बात कर ही लिए तो बात कर लेते करणवीर मेहरा से। आप बताइए आपकी टीम की क्या स्ट्रैटेजी है? अग्रेशन, कामनेस या फिर दिमाग का खेल? How about playing cricket? Just enjoying a game of cricket is fun यार। और अपने सारे दोस्त हैं पुराने और नए, and Bunty's been old, he's an old friend, we've been playing football together। तो बहुत मज़ा आता है जब आप फील्ड पे होते हो सिर्फ इंजॉय करने के लिए। एक्सप्रेस योर कैरेक्टर। वाही का कैरेक्टर ऐसा है, उसने 18 नंबर की जर्सी पहनी हुई है, एंड 18 रिप्रेजेंट्स अग्रेशन। एंड आजकल तो हम देख ही रहे हैं इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट का क्या हाल हुआ है, तो आई एम श्योर वही ऐसा ही कुछ फन देने वाले हैं। और आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस लॉर्ड। और थैंक यू बंटी फॉर हैविंग मी हियर। एंड अग्रेशन की बात की है तो सॉरी, आजकल मैं बड़ी लाइनों के लिए फेमस हूँ यार, तो एक मार देता हूँ सबके लिए। सुना है हर बात का बदला ले लेते हो, सुना है हर बात का बदला ले लेते हो तुम, आजमाऊंगा किसी दिन तुमसे हाथ मिला के। ये तूने ये जो किताब चोरी की है ना सिद्धू साहब की, हमने कहा था कि सीजन 2 में नई राइवलरी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राइवलरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू हो गई है? क्या आपको भी यही लगता है? नाम बताओ। दो लोग लड़ रहे होंगे, फिर जाके प्रिंस मान लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी दो लोग अगर लड़ेंगे, प्रिंस जाके उनको समझाएगा, अच्छे से बताएगा, फिर जाके मारपीट चालू होगी। Now I would like to ask this question to Arjun. Arjun, ट्रॉफी के करीब आते आते आप रह गए, कैसा लगा? इसलिए वो चुप है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है, बट बहुत मज़ा आया पिछले साल खेल के। बहुत करीब था ट्रॉफी के, ऑलमोस्ट हैड इट, बट आई थिंक आमिर्स टीम प्लेड वेल। वो लोग बहुत अच्छा खेले। वो चैलेंज ओवर एक थी जो डिसाइड करती है कि क्या होगा आपके साथ, और उस चैलेंज ओवर में हम पीछे रह गए और वो लोग ने वो रन्स बना लिए थे। बट इस साल उम्मीद है, हालांकि 2 नई टीम्स है, तो उम्मीद है कि इस साल भी अच्छा खेलेंगे, एंड आई होप आई गेट द ट्रॉफी दिस टाइम। आई थिंक सो आमिर के साथ साथ विकी का भी चैलेंज ओवर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहा है। विक्की के कई चैलेंजेस है, वो पहले पूरे कर ले। अब जब हम चैलेंज ओवर के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क दिलीप अग्रवाल जी, हमने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है लीग में। आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर रूल। चैलेंज ओवर से हर किसी को दिक्कत हुई थी, हम बताना चाहेंगे हमारे नए रूल के बारे में। इस साल चैलेंज ओवर नहीं रहेगा, इस साल वही ओवर डबल ट्रबल होगा। तो ये है कि जो बैट्समैन होगा, जो जितने भी रन बनाएंगे उस ओवर में, वो डबल हो जाएंगे। भले 1 बनाए, 2 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, लेकिन अगर बैट्समैन आउट हुआ तो 5 रन कम हो जाएंगे। और ये किस ओवर में होगा? ये वही चौथे ओवर में होगा, क्योंकि बीच में आना है तो बेटर है, तो वो है। और इससे एक ये फ़ायदा रहेगा कि सबके स्कोर बढ़ेंगे। पिछली बार वो चैलेंज के चक्कर में ना काफ़ी स्कोर बढ़ते बढ़ते नीचे हो जाते थे, तो मज़ा चला जाता था। तो इस बार ये है, कोशिश ये है कि टोटल्स ज़रा बढ़े, थोड़ा चेजिंग में भी मज़ा आए, और थोड़ा लगे लोगों को भी हमने रन्स बनाए। बट कैप्टन्स, एक बात और है कि ये जो चैलेंज ओवर चेंज हुआ है, अगर आपने 4th ओवर में अगर आप आउट हो गए तो आपके 5 रन्स भी जाएंगे, माइनस भी होंगे। माइनस निकाला नहीं है, पता है भाई, दोनों टीम के लिए अच्छा होना चाहिए ना। -5 की कोई वेरिएबल है, इससे लास्ट टाइम फाइनल्स में ऐसा हो गया था कि अर्जुन के स्कोर माइनस में चले गए थे।
नहीं, बेसिकली क्रिकेट जब भी हम देखते हैं टीवी पर या कहीं पर भी, जब भी हम बचपन में खेलते थे तो सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब स्कोर ज़्यादा बनता था. सो दैट्स द आइडिया दिस ईयर इन सीज़न 2 कि स्कोर जितना हो, जितनी टीम्स खेलें, स्कोर अच्छा बने, ताकि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जो लोग देख रहे हैं वो एंटरटेन हो, उन्हें मज़ा आए. और एक्चुअली जैसे क्रिकेट हम बचपन में खेलते थे और जो मोटो है इस लीग का कि बचपन का खेल करेगा एंटरटेन, वो हम बरकरार रखें ताकि जब रन्स बनते हैं तभी एंटरटेनमेंट होता है. एंटरटेनमेंट की अगर बात करें ना, तो मैं पूछना चाहूँगी करणवीर बोरा से. मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले सीजन में कहा जाता था कि जो स्वैग से जो ग्राउंड पे एंटर होते थे वो थे हमारे अर्जुन बिजलानी. ही वॉज कॉल्ड द सनग्लासेस हीरो. आज दिखाई दे रहा है कि आप सनग्लासेस हीरो बनकर आए हैं. नहीं, जो अर्जुन करता है वो स्वैग ही होता है, और जो अर्जुन हाँ, इसलिए करण अर्जुन की ये जोड़ी होती है. बट द गुड पार्ट इज यहाँ पर एक अर्जुन है, यहाँ पर 3-3 करण है, तो कौन अर्जुन को लेगा वो अलग बात है. करण, अपनी टीम की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, क्योंकि आई थिंक सो ये जो चैलेंज ओवर के बारे में हम बात कर रहे थे ना, इससे आपकी टीम को भी काफ़ी फर्क पड़ा था. ऑफ कोर्स पड़ा था. आई थिंक इट्स अ ग्रेट, जो नया वाला रूल आया है इट्स मच बेटर, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूजन था पहले वाले में. ये सिंपल है, आप जितना बनाए उतना डबल है, और जो नहीं बनाए 5 माइनस हो जाते हैं. हाँ, विकेट गया, whoever gets out 5 is minused. हाँ, हाँ ठीक है, अभी टाइम है, 3 महीने और बचे हैं. देख रहा हूँ तुझे तो कितना सीरियस है. No, but I think it's a great game. बोलते हैं ना, बचपन का खेल जवानी का सच हो गया ये. So Bunty has actually made that happen. It's a fun game. We've always played these gully crickets, और अब यही वाली गली क्रिकेट has become all stars tennis ball league. करण, आपने जो बोला उसकी वजह से एक और क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हर विकेट गिरने पे 5 रन कम है. ऐसा नहीं कि 3 उसी ओवर में हर, हाँ, अरे बहुत सॉलिड. और एक और रूल है जो हमने थोड़ा चेंज किया है कि पहले विकेट के पीछे रन नहीं थे. इस बार हमने ये कहा है कि अगर बैट से लगा तो आप भाग के रन ले सकते हैं, डिक्लेयर्ड नहीं है, भाग के लेना पड़ेगा. और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने ऐड की है कि दिमाग से खेल, बिकॉज अगर आप दिमाग से खेलोगे तो आप इस गेम को जीत पाओगे. पावर से नहीं जीत पाओगे इस गेम्स को, दिमाग से खेलोगे तो जीतोगे. ये हैशटैग है सीज़न 2 का, दिमाग से खेल. Thank you so much Bunty जी, thank you so much दिलीप जी. Now हमने कुछ दिन पहले एक कॉन्टेस्ट रन किया था इंस्टाग्राम पे. आपके चहीते सुपर फैंस आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे लीग रिलेटेड, और हमारे पास वो क्वेश्चंस आ भी चुके हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू सूर्या शर्मा. आपकी सुपर फैन अंजलि आपसे पूछना चाहती है कि ऐसा कौन सा पेप टॉक देते हैं आप? क्या देता हूँ? पेप टॉक देते हैं अपनी टीम को. ऐसा कौन सा पेप टॉक, व्हाट इज द बिगेस्ट पेप टॉक मोमेंट दैट यू हैव हैड? एंड मैं इसीलिए भी इनसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि सीजन 1 में ये सबसे ज्यादा टीम हडल लेते थे, सबसे ज्यादा लंबी टीम हडल्स लेते थे. ऐसा क्या पेप टॉक देते थे आप अपनी टीम को? ये सब आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे. एक्चुअली ये तो पहली बार मिले थे. मुझे खुद ही याद करना पड़ रहा है कि मैंने ऐसा क्या बोला था. एंड कुछ नहीं, अच्छे से खेलो. वही है जो बंटी भाई ने बोला, दिमाग से खेलो, बढ़िया से खेलो, क्योंकि रूल्स ऐसे हैं जिनको समझना ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि आप उतर के ग्राउंड पे और क्रिकेट खेलना है, तो रूल्स समझोगे जितना उतने अच्छे से आप खेल पाओगे. कैप्टन आपको बहुत पसंद है, क्यों मेरा सुनते हैं? आई थिंक वही है. आई थिंक आपकी सुपर फैन भी बहुत ज्यादा खुश होगी ये आंसर आपसे जानकर. अब रोहित रॉय जी, आपसे आपके सुपर फैन आयुष पूछते हैं कि वो गली क्रिकेट का ऐसा कौन सा रूल है जो ये सवाल मुझसे पूछा गया इसलिए जवाब दे रहा हूँ, कंफ्यूजन के लिए नहीं, है ना. बट दैट्स वन थिंग आई वुड इनकॉर्पोरेट. आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड एग्री ऑन दैट. और विकी भैया के लिए बेबी ओवर. 3 बॉलों वाला बेबी ओवर. इनको उंगली पे पूरा हाथ पकड़ लेते हैं, इनकी बचपन से आदत. अगर गली क्रिकेट की बात करें तो गली क्रिकेट में तो ये भी होता है ना, जिसका बैट उसी को बैटिंग करने का मौका मिलेगा. की ना, जिसका बैट था उसने बहुत बैटिंग की, बॉलिंग भी की, हाईएस्ट विकेट टेकर, और क्या चाहिए? बट आप कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? वैसा मेरा और अर्जुन का है, जिसकी टीम वो कैप्टन.
थैंक यू सो मच. आई थिंक सो हमने काफ़ी मस्ती कर ली आपस में, लीग के बारे में भी काफ़ी बात कर लिया. नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम द प्रेस. नाउ यू कैन शूट ऑल योर क्वेश्चंस टू आवर फेवरेट स्टार्स ऑफ सीजन 2 ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग. आप अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर सकते हैं प्लीज. Hello. Yeah, hello everyone. Siddharth from Instant Bollywood. My question to sorry. मेरा सवाल बंटी जी से है. बंटी जी, how challenging it is to keep all of them together as a Great question. Great question. It's extremely challenging to handle 10 spoilt brats. Extremely. You know, it's easy to handle professional athletes, but it's extremely challenging to handle 10 brats. But they are lovely, they're lovable, they listen to me. Thank God for that. Anybody else? Hi, this is Alice Peter from Amarasi. My question, hi, here, in the middle. Sorry, I can't stand. My question's for Prince and Karanveer. So because this is, you guys can hear me, right? Yeah. Okay, yeah. So because... We can also see you. Oh, that's great. Okay, so because you guys are new entrants in this season, आपके हिसाब से सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? मैंने इसका जवाब दिया. मुझे लगता है कि करण भाई मैंने बोला है कि सबसे खतरनाक खिलाड़ी है. मुझे भी लगता है कि करण. देखो, वी आर न्यू टू द लीग, वी आर नॉट न्यू टू द गेम. एंड क्रिकेट तो हमारे खून में है ना. इट्स अ रिलीजन फॉर स्पेशली इंडियंस. और वाही विल सेकंड इट. मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो मज़ा आएगा. आओ मिलते हैं. और ट्रॉफीज़ की तो आदत सी हो गई है अब. Thank you. आओ बेटा आओ. हेलो, यहाँ पे प्रिंस भाई, आपसे मेरा सवाल है. आपने जिस तरह से रियलिटी किंग जो आपका टैग है, एंड 4 रियलिटी शोज आपने जीत चुके, ये इसके लिए, और अभी भी सबसे करीब ट्रॉफी के आप ही हो, सबसे करीब. किस तरह से देखते हो ये? नहीं. हाउ डू यू सी? सबसे पहला ये सवाल है. एंड आपके इंट्रोडक्शन में जब रियलिटी किंग बोला गया तो अली भाई ने बोला कौन, एलविश भी आ रहा है, तो ये भी थोड़ा था. और एलवीएम नहीं यूज कर रहा हूँ मैं ना. वो विक्की भाई का खास फ्रेंड है. वो विक्की ने बोला था, मैं सुन रहा था वहाँ बैठ के. मैंने बोला ना, तभी तो बोला कि एक ही है यहाँ पे जो पैसे दे के आया, वो विक्की जैन. इसको वो भी पैसे देता है भाई, मेरा नाम लेता रहा कर हर बार. भाई मैं ट्रॉफी के पास बैठा हूँ, अच्छी बात है. पर मैं ना, बहुत सारे शोज होते हैं जहाँ पर हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं. मैं यहाँ पर मजे करने आया हूँ अपने भाइयों के साथ. सो उसके साथ जो होगा, वो हिट ऑफ द मोमेंट जो होगा, वो ग्राउंड में होगा. उसके साथ मुझे लगता है कि सब अच्छा खेलेंगे और अच्छे मजे करेंगे यार. अर्जुन भाई, यहाँ पे माइक ले रहा था. यस, लास्ट टाइम थोड़े डिसअपॉइंट हो गए क्योंकि फाइनल के इतने करीब आके, एंड पूरी सीजन आपने काफ़ी अच्छा खेला था, शानदार गेंदबाजी भी आपने की थी. हाउ डिसअपॉइंट यू वेर दैट टाइम, एंड क्या प्रिपरेशन है आने वाले समय में? डिसअपॉइंटेड तो था बिकॉज लास्ट ईयर बंटी वॉज ऑल्सो इन द सेम टीम. एंड ऐसा लग रहा था जब हम फाइनल में आए कि हम शायद जीत जाएंगे. बट क्रिकेट गेम ही ऐसा है कि यू नो, वो चैलेंज ओवर पिछले साल जो था वही डिसाइड करता था कि क्या आप जीतने वाले हो या नहीं जीतने वाले हो. तो उनके प्लेयर्स ने वो रन्स मार दिए और हमारे प्लेयर्स वो रन नहीं बना पाए. ऑल्सो देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. काफ़ी कन्फ्यूजन भी था उस दौरान चैलेंज ओवर को लेके. बट वीव लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वीव करेक्टेड देम. नए रूल्स आए हैं और विच आर मच ईजियर फॉर इवन द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी तो ड्राफ्ट होगा, आप लोग सब तब होंगे,
तब नए प्लेयर्स होंगे, हर टीम में नए प्लेयर्स होंगे। और अभी सब आप पूछ रहे हो कि कौन ज़्यादा अच्छा खेलता है। देखिए हम कैप्टन है, इवेंचुअली क्रिकेट ऐसा गेम है जो बाकी 7-8 प्लेयर आपके साथ होंगे, वो डिफाइन करेंगे कि गेम कैसे चलेगी उस दिन। यू नो एनीबडी कैन विन एंड एनीबडी कैन लूज। वंस वी हैव आवर टीम्स वी विल नो कौन स्ट्रांग है और कौन नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी जब इतने वो उसके लिए हम हैं, है ना। और आई लाइक द वे यू टुक दैट, एक ही ब्रेथ में जो बोल दिया हाँ बहुत डिसअपॉइंटेड था। बंटी भाई हमारी टीम में थे। Apparently he was the league's best bowler last year, बंटी वालिया। तो बचपन का खेल ये होता है, मैं अपनी टीम खरीद के उसमें कैप्टन बन गया, ये लीग खरीद के बेस्ट बॉलर बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विक्की अपने बारे में कह रहा है वो सही है, मेरे बारे में गलत है, क्योंकि मैंने चूज़ नहीं किया। जो थर्ड एम्पायर थे वो चूज़ करते हैं, और वो जो डेटा अवेलेबल होता है उसके हिसाब से जाते हैं। तो डेटा वही बता रहा था जो सच्चाई थी, तो सच्चाई से कोई छुप नहीं सकता, और जलते हैं। चलने वाली बात थी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब ये लीग शुरू हुई थी तब हमें एहसास नहीं था कि फील्ड पर ये गेम कैसे ट्रांसलेट करेगा। लेकिन जैसे सबके रिलेटिव, सबके दोस्त, इतने सारे फैंस जब वहाँ पर पहुँचे और एक हमें चीयर करते हैं या वो जो गेम शुरू होता है, तब एनर्जी जो फील्ड पे होती है, जैसे हम आईपीएल में इतना एंजॉय करते हैं, ट्रस्ट मी एज कैप्टन्स, एज प्लेयर्स, हम उतने ही मस्ती के साथ और उतने ही जोश के साथ खेलते हैं। बिकॉज जब भी आप लोग भी कभी क्रिकेट खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो वो जोश तो हर जगह सेम ही होता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट द स्पिरिट ऑफ दिस गेम इज़, ऑल स्टार्स टेनिस क्रिकेट लीग। एंड आई एम सो ग्लैड दैट बंटी वालिया हैज स्टार्टेड दिस लीग, एंड ये दूसरा सीज़न है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले जितने भी सीज़न आएंगे ये गेम और बेहतर होता जाएगा, और बहुत सारे लोग हमारे इस लीग से जुड़ेंगे। थैंक यू। Thank you so much. Do we have any more questions? Yes, yes. मेरा क्वेश्चन सारे टीम्स कैप्टन को है। जैसे कि क्रिकेट की बात चल रही, तो सबके पास कोई ना कोई चाइल्डहुड मेमोरीज होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे, जब आप लोग भी छोटे होंगे, तो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना बहुत ऐसा लगता था कि आज हम टेनिस बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो रेड जो रबर का बॉल रहता था उससे नॉर्मली हम खेलते थे। तो ये सब कुछ आप चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करना चाहेंगे क्रिकेट से रिलेटेड? अरे बोल दीजिए। चाइल्डहुड मेमोरी वही सबकी वही होगी। हम सभी ऐसी जगह से आए हैं कि तो जब गांव में खेलते थे तो ये होता था कि शीशे टूटते थे बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो आंटियाँ आती थी और वो मार के भागना, वही मेमोरी है कि कि जब छुपते थे कि यार अब जब तक आंटी बॉल नहीं देगी, ये आंटी का शीशा टूट गया। तो हमारी तो यही मेमोरी है कि वो बच के नहीं बॉल के लिए पैसे इकट्ठे करना एक साथ मिलके, है ना, कि 2 रुपये तू डाल 10 रुपये की टेनिस बॉल आती थी। सो हमारी तो यही मेमोरीज हैं। Anyone wants to share? मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग के टाइम पे फ़ोन वोन नहीं था, सीधा जैसे स्कूल छूटती थी हम लोग नीचे जाते थे, चाहे अंडर हम हो ओवर हम लोग बस क्रिकेट ही खेल एवरी डे। मतलब धूप पता ही नहीं चलता था कि धूप इतनी हो रही है, लेकिन वी वुड जस्ट इंजॉय, चाहे मतलब वीकडे हो या वीकेंड हो, वी वुड जस्ट इंजॉय प्लेइंग। आई मिस दैट टाइम। आई मिस these children who are on the phone all the time, who hardly play. It is that's the memory I have. This is my childhood memory, no? I'm still a child. I'm having fun with these boys who are much older than me. So I'm having a great time and making some memories, है ना? और ज़्यादा इंटेलिजेंट मत बोलना। बस सेम वही, बस बैट मेरा बॉल मेरा, और जिस बैकयार्ड में जहाँ खेलते थे वो बैकयार्ड भी हमारा ही था, इसलिए बहुत मजा आया मुझे। मेरी वही मेमोरी है हमेशा। कोयले की बॉल। सबकी मेमोरी क्रिकेट को लेकर तो सेम है, लेकिन मेरी एक खास मेमोरी है।
मैं 6th फ्लोर पे रहता था, मैं पहले माहिम में रहता था, तो जब भी स्कूल, जैसे कि करमवीर ने कहा कि हम स्कूल ख़त्म हुआ नीचे गए पहुँचे, तो एक्साइटमेंट बहुत रहता था कि बस बैग उतारी, फटाफट कपड़े चेंज किए और नीचे चला। लेकिन मेरे डैड जो थे उस टाइम, वो हमेशा कहते थे कि वो केसर का दूध पी के जाना। तो मैं वो कभी मतलब छूट ही जाता था मुझसे, लेकिन मैं नीचे जाता था तो वो 6 माले से नहीं, जब मैं जाता था, इट्स अ वेरी फॉन्ड मेमोरी, तो वो ऊपर से चिल्लाते थे, अर्जुन तू दूध पी के नहीं गया। सो एज टू मेरी बैटिंग हो या बॉलिंग हो, मुझे वो छोड़ के जाना पड़ता था, बिकॉज तब तो हम बच्चे थे, बट एज टू ऑलवेज for me it's a fond memory because I lost my dad very early. तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि काश वो चिल्लाए और मुझे बुलाए ऊपर कि अर्जुन आजा, ऊपर आजा, दूध पी ले। चाइल्डहुड मेमोरी नहीं पता, चाइल्डहुड विश था कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट जीत जाऊं, और लास्ट ईयर हो गया, तो बस वही। थैंक यू। We used to play test match. मेरे घर तो रोज़ किसी ना किसी बच्चे की मम्मी आ जाती थी, क्योंकि मैं 1-2 को लपड़ मार के आ जाता था। मेरे बचपन में बहुत झगड़े हो गए मेरे, हर मैच में गली में झगड़ा होता था, बैट को लेके, बॉल को लेके। किसी की बॉल पसंद आ गई तो मैं जेब में डाल देता था, तो बच्चा रोते अपनी मम्मी के पास जाता था, फिर उसकी मम्मी मेरे घर आती थी, फिर उसकी मम्मी मिलके मेरी मम्मी दोनों मुझे पीटती थी। फिर मैं बॉल दे देता था वापस, फिर अगले दिन मैं खुंदक में फिर बॉल ले लेता था। क्यों? फिर आदत सी पड़ गई थी, पिटने की आदत होती थी। आज के बाद अगर किसी ने कहा ना कि मुझे गुस्सा आता है फील्ड में, वो वाली मेमोरी भी बता जो मुझे बता रहा था। नहीं, आई थिंक चाइल्डहुड मेमोरी, जैसे प्रिंस ने कहा, सबसे आई थिंक कॉमन मेमोरी वही है कि शीशे टूट रहे हैं, बट हम सब क्रिकेट खेलते हैं, बचपन से खेलते आए हैं, बट आई थिंक इस लीग के थ्रू ना टू रीलिव सर्टन थिंग्स जो हम बचपन में करते थे, उसका बहुत मज़ा है। क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं नॉर्मली तो नॉर्मल रूल्स होते हैं क्रिकेट के, बट बिकॉज व्हेन बंट्स गॉट दिस लीग, द फंडा वाज ओनली कि वो बचपन के रूल्स के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा अपना मेंटल स्पेस। तो आई थिंक वही है, बाहर जाना आउट है, शीशा टूट गया तो आंटी प्लीज बॉल दे दो। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू एक्चुअली रीलिव दोज मेमोरीज। मैं माइक तोड़ दूंगा। हाँ, मतलब वही है। एंड जैसे भाई ने कहा, मेरा बैट मेरी विकेट मेरी पिच। पता नहीं भाई, आई नो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, बट इतनी मेमोरीज हैं क्योंकि मैं तो बहुत क्रिकेट खेला हूँ। वाही विल सेकंड मी ऑन दैट। मेरा स्कूल कॉलेज एडमिशन सब क्रिकेट पे हुआ है, मैं डरा नहीं रहा किसी को। पर आई वॉज विद मोहिंदर अमरनाथ अकेडमी, और 4-4 घंटे फील्डिंग होती थी हमारी वो क्रिकेट बॉल से, सूज गए होते थे छोटे छोटे हाथ हमारे। एंड देन वन ऑफ माई रिलेटिव्स टोल्ड मी, इतना काला हो गया, इससे लड़की कैसे मिलेगी। दैट काइंड ऑफ स्विच्ड, एंड मैंने फील्ड गेम खेलना बंद कर दिया। सो नहीं, फिर मैं एक्टिंग में तब घुसा, मैं तब आई गॉट इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मेट सो आई होप कि हम कहीं ना कहीं यंग जनरेशन को इंस्पायर कर सकें। मतलब मेरे टाइम पे अगर IPL होता तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा होता। आई नेवर ओनली हैड इंडिया 11 एंड इट वाज अ ग्रेट स्ट्रगल। अब इतनी लीग्स आ गई हैं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई बच्चा देखेगा तो वो कहीं ना कहीं ही विल वांट टू मूव फॉरवर्ड इन क्रिकेट और एनी स्पोर्ट, एंड नॉट रियली हैव दिस बैकवर्ड थिंकिंग ऑफ कि अरे कलर ये है तो वो है चीज़ें। एंड मेमोरीज तो ऐसी हैं, मतलब मैं आई रिमेंबर आई वाज प्लेइंग अ गेम इन मतलब घर के पास ही कहीं, और मैं फेल हो गया था। 7th ग्रेड में मेरा पोस्टमैन लेके आ रहा है और मैं बैटिंग कर रहा हूँ शायद 89 पे, और मैंने देखा फेल, लाइक आई फ्लंक क्लास, एंड एवरीबडी थॉट कभी तो गेम खत्म तो जा रहा है। और मैंने उसको बोला तू घर जा, मैं आ रहा हूँ, सेंचुरी मार के ही गया मैं वापस। सो लॉट ऑफ मेमोरीज, एंड आई होप दैट विद दिस लीग we can really inspire the new generation to start playing more sports and more cricket and have this sportsmanship. It's a gentleman's game, not so much now, but have that aggression, have more Kohlis, Rohits, Wahis on the field so that India becomes proud. But media एक चीज जानना चाहती है, फाइनली लड़की मिली? मीडिया को सब पता है, कुछ ज्यादा ही नहीं मिल गई अब। भाई ने सही कहा है कि बहुत सारे लीग्स आ गए हैं क्रिकेट के,
but this is Bunty's league, and we are in the league, and I really salute him for the way he has kept us disciplined, and this game is about sportsmanship and discipline. So I think this league is going to go years and years. मुझे ऐसा लग रहा है. It's going to be one of the best leagues possible. I'd just like to thank everybody. But my inspiration to start this league is my son who's sitting here. Johan. He's an avid sports person. He's been playing sports from year one. He comes and plays football and now cricket. He plays and basketball. He plays all the sports. So obviously Karan, he's the one who inspired me to start this league, and I coined the term "Bachpan ka khel karega entertain." Thank you everybody. Thank you for coming. Thank you everybody. Now I would please request Vanessa Walia to please join us on the stage for a photo op. Vanessa's coming, I think. Vanessa, come. Are you coming? Yeah, come. Wait. Please give a huge round of applause to the visionary and leader behind GS Sports, Vanessa Walia, and Junior Walia. Ira, come. Come on. My kids are here, so come on. Yeah, come on. We shall be doing an individual captain session as well, post this. Okay, we'll have just the 10 captains now on stage. Just take a picture with them. Thank you so much, Mrs. Walia. Thank you so much, Bunty. Thank you so much, Mr. Dilip Agarwal. Can we please have the captains together for the photo session? Guys. Thank you so much from our friends from the media. Thank you so much. Good to see you guys. और आप कुछ कहना चाहेंगे इस लीग के बारे में?
इस लीग के बारे में मतलब मैं जितना भी काम या कोई भी चीज़ यहाँ पे चूज़ करता हूँ ना, मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि कौन कौन वहाँ पे है, क्योंकि अगर आपकी आपस की लोगों की वाइब नहीं मैच करती ना, तो उसका रिजल्ट फिर देखने को मिलता नहीं है एंटरटेनमेंट में। तो मेरे सारे यहाँ पे दोस्त हैं, सारे लोग सब लोग साथ में हैं। एक आइडिया आया कि भाई एक नई लीग शुरू हो रही है, बंटी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और बंटी जब भी बात करता है ना तो कोई बिजनेस या पैसों की करता है, फालतू बात करता नहीं है। तो बंटी ने मुझे सबसे पहले कॉल किया और बोला कि भाई एक ऐसी लीग आ रही है, और इस देश में क्रिकेट एज अ स्पोर्ट का एक अलग ही फीवर है। व्हेन आई से फीवर, इट एक्चुअली इज़ अ फीवर। तो किसी भी लीग से अगर आपको जुड़ने का मौका मिलता है ना, तो एक डेफिनेटली एक्साइटमेंट होती है। और लीग का सीज़न 2 आ रहा है, और सीज़न 2 आना ही अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि सीज़न 1 का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था, और टचवुड बहुत अच्छा रहा था, और सब अच्छे फेसेस हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब लगते नहीं हैं बट स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सीरियस हैं, और जो हो जाते हैं लास्ट तक, जब प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती है, जैसे अभी ड्राफ्ट होगा, फिर प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वो होते होते इतना एक मज़ा आने लगता है ना, एक्साइटमेंट हो जाती है, तो मज़ा आता है यार। इट्स लाइक अ गुड सोशल एक्टिविटी विच लॉट ऑफ फ्रेंड्स डू टुगेदर। तो स्पोर्ट्स भी है, मज़ा भी है, एंटरटेनमेंट है, तो इट्स गुड फन, गुड प्लेटफॉर्म। सवाल ये था कि ऐसी कौन सी टीम है जिससे आप बिल्कुल हारना नहीं चाहेंगे इस लीग में? आपकी राय? यार मुझे ऐसा लगता है हारना एक ऐसा शब्द है कि आप वैसे किसी से हारना नहीं चाहते, आप वैसे नहीं हारना चाहते, और आप खुद से भी नहीं हारना चाहते। जिस दिन आप खुद ख़राब परफॉर्म करते हो ना, उस दिन आपको सबसे ज़्यादा दुख होता है कि यार मतलब जो भी ऐसी चीज़ें थी जो अपने कंट्रोल में हो सकती थी, जो हम कंट्रोल में नहीं कर पाए, सबसे ज़्यादा दुख उस चीज़ का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है किसी से भी हारने में बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन इस बार हारना है नहीं। जैसे कि स्पोर्ट्स से ना अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाती है, काफ़ी कुछ अलग तरीका। आपको किस प्रकार मतलब मैं तो इसको एक फ़िटनेस की तरह ज़्यादा देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई फ़िटनेस रूटीन रखना है, और उसमें अगर आप स्पोर्ट्स को इंक्लूड कर लेते हो, तो सबसे अच्छा होता है, बिकॉज उसमें मज़ा भी आता रहता है, लोगों से भी मिलते रहते हो आप, क्योंकि नॉर्मल फिटनेस से समटाइम इट गेट्स बोरिंग और सब लोग कर नहीं पाते हैं। तो आई एन्जॉय स्पोर्ट्स मोर देन रादर देन जस्ट गोइंग टू द जिम एंड वर्किंग आउट। विराट कोहली सर, धोनी सर, एवरीबडी यार, देयर आर लॉट्स एक्चुअली। मतलब इतनी सोचो ना, इतनी बड़ी टीम होती है, इतने सारे लोग होते हैं, हम कई बार बस एक नाम ले लेते हैं, एक नाम से नहीं होता, पूरी टीम से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार कभी ना कभी कोई, मतलब जो भी अच्छे से मेहनत करके इतना आगे पहुंचा है, आई रिस्पेक्ट देम फॉर श्योर। आपको शेफ बनते देखा हमने, बिग बॉस में अलग तरीके का देखा, मास्टरमाइंड, और स्पोर्ट्स खेलते हुए देखा, और आगे क्या कुछ कमिंग? अभी मैं बिज़नेस साइड में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री का, मतलब कि प्रोडक्शन हाउस में वर्क कर रहा हूँ। फौजी अभी मैंने प्रोड्यूस किया था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसका। कुछ और चीज़ें पाइपलाइन में हैं, मतलब सीरियस वर्क इज़ गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें अभी अनाउंसमेंट्स होंगे अच्छे। ज़्यादा पैसे नहीं, मतलब क्या हुआ है कि इसमें जितने भी कैप्टन्स हैं सारे के सारे, उनमें से कुछ ओनर्स एंड कैप्टन्स हैं, और कुछ सिर्फ कैप्टन्स हैं, और उनके ओनर्स डिफरेंट हैं। तो जैसे मैं और अर्जुन बिजलानी दो ऐसे लोग हैं जिनकी ये पूरी खुद की टीम भी है, और हम कैप्टन्स भी हैं, लाइक दैट। बिकॉज आगे जाके कोई शो प्रोड्यूस करना, आप टेलीविजन शो प्रोड्यूस करना चाहेंगे? तुम अभी मतलब एक टेलीविज़न शो ऑलरेडी मतलब सब फाइनल है, अब से वो अनाउंसमेंट्स पे है, वो मैं बताऊंगा अनाउंसमेंट पे। कुछ तो एक्साइटमेंट छोड़ दे, इसको सब जानना होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना एक्साइटमेंट है इस लीग? मैं ना, जब ये सीज़न 1 शुरू हुआ था ना, अच्छा जब सीज़न 1 शुरू हुआ था ना, बंटी ने जब मुझे फ़ोन किया था कि भाई ये ASTCL है और इसको खेलना है, तो बगैर कोई रूल्स जाने, बगैर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछे, बोला कि तू कर रहा है लीग, आई एम पार्ट ऑफ इट। बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन बंटी डज समथिंग, वो बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही क्लास का होता है, और वो लंबे समय तक चलता है। एंड आई रियली लव दैट अबाउट बंटी, बिकॉज वो खुद पूरी जान डालता है। सो आई नो आई एम पार्ट ऑफ अ वेरी बिग लीग, और इसका फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट भी कमाल है, फ्यूचर धमाल होने वाला है। इस बार क्या कुछ प्रिपरेशन है सीजन 1 के अकॉर्डिंग? देखो, सीज़न 1 जितनी प्रिपरेशन की थी उससे डबल ही होगी, बिकॉज इस बार तो ये ट्रॉफी घर लेके जानी है। ड्राफ्ट की स्ट्रेटेजी क्या है फिर? जो लास्ट टाइम वाली स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही सही थी, बस दिन सही नहीं था हमारा, तो उसी स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे। एंड जो हमारे MVP हैं, जो हमारे मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स हैं, वो क्या कमाल के प्लेयर्स होने वाले हैं। यू ऑल मस्ट वॉच आउट फॉर इट। आपको क्या लगता है कौन सी टीम के कैप्टन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस? आई थिंक एवरीबडी, बहुत सब लोग जब गेम खेलते हैं, आप लोगों ने पिछला सीज़न देखा हो, जब घुसते हैं ना तो ऐसे घुसते हैं कि लिटरली कोई, मतलब वो बुल्स होते हैं ना, वो बुल्स के जैसे हम लोग फील्ड पे खेलते हैं। तो एवरीबडी इज गोइंग क्रेजी ऑन फील्ड। और ऐसी कौन सी टीम है जिससे हारना पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी?
कोई भी टीम से हारना पसंद नहीं करेंगे यार। आई नो एग्जैक्टली, हमें जीतना पसंद है यार, वो हारेंगे क्यों हम? नोबडी लाइक्स टू लूज। तो हम लोग खेल रहे हैं वो ट्रॉफी घर ले जाने के लिए। जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि करण भाई काफ़ी एग्रेसिव, हाँ, लेकिन आपको हम अगर ऑन स्क्रीन देखें तो आप काफ़ी एग्रेसिव हैं। आप किस प्रकार अपनी टीम को हैंडल करते हैं? देखिए करण वाहिद जो है वो अपने अग्रेशन को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। मैं मेरा अग्रेशन मेरे रोल्स में यूज़ करता हूँ, बिकॉज रियल लाइफ में क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ हैं तो मैं ज़्यादा अग्रेशन शो नहीं कर सकता हूँ और मुझे करना भी नहीं है। इन रियल लाइफ आई एम मोर चिल्ड आउट, मोर रिलैक्स्ड। हाँ, अंदर बहुत सारे वो फ्रस्ट्रेशंस रहते हैं फॉर कि अगर कुछ हो जाए कुछ नहीं, तो वो सारे फ्रस्ट्रेशन जो है ना मैं अपने रोल्स में डाल देता हूँ। मैंने एक और क्वेश्चन, अभी जिस प्रकार ये है हमारे अनिल जैन जी, राजस्थान। ओके अभी कमिंग आ जाओ। क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट से आपका कौन सा फेवरेट है, कौन इंस्पिरेशन है? आई एम ओल्ड स्कूल। ओके, मेरे ओल्ड स्कूल फेवरेट्स है कपिल देव, मेरे ओल्ड स्कूल फेवरेट है सुनील गावस्कर जी, वो लेटेस्ट में विराट कोहली इज़ माई फेवरेट। आई लव हिम एंड ऑलवेज विल। आ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो यार बिग बॉस आई थिंक हम 1000 एक्टर्स को आता है, हमें भी आता है, बट वो आई थिंक हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक सही चीज़ होती है। तो जिस दिन कर रहा हूँ ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। सीजन 1 के थ्रू आपके ऊपर टाइटल एक टैग लग गया, हाँ, एग्रेशन। हाँ। इस प्रकार इस सीजन में भी कुछ ऐसे ही दिखाई देगा? ग्राउंड के अंदर मैं वैसा ही हूँ यार, ग्राउंड के बाहर मैं बहुत शांत हूँ या यारी दोस्ती वाला इंसान हूँ। आई थिंक क्रिकेट ना एक मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ दे, मैं पकड़ लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट ना एक अलग तरह का पैशन मुझ में लाता है, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब कोई भी जब स्पोर्ट खेलते हैं ना तो जीतने के लिए खेलते हैं और खेलना चाहिए। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने आया हूँ, क्योंकि अगर आपका थॉट ही पार्टिसिपेशन होगा तो आई डोंट नो आप कहाँ तक पहुँचोगे। हाँ, लड़ाई झगड़ा एक लिमिट तक अगर हो तो अच्छा होता है, और आई थिंक हम वही कोशिश करते हैं। कभी कभी टीवी पे जो अनबन ज़्यादा दिखती है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बिकॉज गेम ख़त्म होती है उसके बाद सब वी ऑल शेक हैंड्स एंड वी ऑल गो अपनी अपनी जगहों पर। बट आई एम ग्लैड अगर ये टैग है, बिकॉज इट मेक्स मी बिलीव इवन मोर इन माई सेल्फ एंड माई पैशन फॉर द गेम। इवन जैसे कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का एग्रेशन आ जाता है। क्या बचपन से आप उनको देख के बड़े, इसलिए वो कुछ ऐसे? नहीं यार, मेरे साथ के ही हैं वो, मैं कोई इतना छोटा नहीं हूँ, और सिर्फ वो दोनों, एक्चुअली वो दोनों मेरे से छोटे हैं मैं बड़ा हूँ। सिर्फ वो दोनों नहीं, आई थिंक आप अगर अभी हमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज़ देखा हो तो वो दोनों नहीं थे इंडियन टीम में, बट आई एम श्योर वो आखिरी दिन हम सब जब एज व्यूअर्स टीवी पे मैच देख रहे थे तो हमारे अंदर भी वो एक एग्रेशन था। और आई थिंक विद टाइम क्या हो गया ना, हम इंडियंस को पहले आदत नहीं थी गिव बैक करने की। पहले हम हमेशा बोलते थे ऑस्ट्रेलिया आती है वो हमें बहुत स्लेच करती है, एंड आई थिंक एज इंडियंस वी हैव इवॉल्व्ड, वी हैव लर्न टू गिव इट बैक। तो ये जो अग्रेशन है, आई थिंक थोड़ा दिल्ली का भी प्रॉब्लम है हमारा, हम दिल्ली से है ना। दिल्ली की जर्सी में जीत चुके हैं भाई, हमने आपको जीतते हुए देखा है, तो इस वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है? यार पता है, मैंने जब ये टीम मुझे मिली थी दिल्ली ड्रैगन्स, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, बिकॉज मेरी दिल्ली ड्रैगन्स की ही टीम थी और मैं 4 सीज़न जीत चुका हूँ आई थिंक इसी टीम के नाम के अंडर। तो ये अब लीग अलग है एंड होप करेंगे कि सेकंड सीज़न हम जीतें। इस साल प्लेयर्स और नए आ रहे हैं, बहुत सारे एक्टिव फ्रेंड्स ने इस साल हाँ करी है हमें कि हम आएंगे, हम खेलेंगे। तो आई थिंक मज़ा आएगा। क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है, और बस कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा मज़ा हमें आता है उतना ही ऑडियंस को आए। तो आई थिंक फिर हार जीत फिर मतलब वो तो लिखी है। थैंक यू सो मच।